Hello everyone, welcome to PCA. Hope you are doing good. Today we are going to discuss powers of president. In the previous lecture we have discussed the procedure of election for the office of president in India, wherein we have discussed that the president of India is elected in an indirect way. The method used in his election is proportional representation by means of single transferable vote, and then we have discussed the electoral college, the members of the electoral college who are entitled to vote in the election of the president. So today we are going to see the powers of the president, but before we start discussing the powers of the president, let me tell you that once the president gets elected, he has to fulfill I would say there are some conditions, or I would say there are some qualifications, which I forget to convey to you in the previous lecture. For example, as far as the qualifications to become the president of the India are concerned, एक तो है कि citizen of India. A person has to be citizen of India. Foreigners cannot become the president of India. ठीक है? They cannot contest. They cannot contest the election of the president. इसी तरीके से as far as the age is concerned, 35 years age है, ठीक है? A person who wants to contest the election of the president, he should have completed 35 years of age. और इसी तरीके से a person must be qualified for the election of a Lok Sabha, ठीक है? और once the president gets elected, he has to make and subscribe an oath, जिसे हम कहते हैं हलफ उठाना. He has to make and subscribe an oath on the Constitution of India, wherein he has to state that he will run the administration as per the rules and regulations or as per the principles mentioned in the Constitution of India, ठीक है? And he will uphold the Constitution of India in each and every matter and aspect. And who administers this oath to the president? It is Chief Justice of India. Chief Justice of India. And in his absence, a senior most judge of the Supreme Court can administer the oath, ठीक है? And if you see, recently news में चला है, जो CM वगैरह oath लेते थे, ministers oath लेते थे, they are administered, their oath is administered by respect to governors of the states, ठीक है? For example, तमिलनाडु में स्टेलिन ने oath लिया है. His oath as a CM was administered by governor of Tamil Nadu, ठीक है? तो now you might be thinking about कि अगर प्रेसिडेंट का इतना बड़ा ओहदा है, इतनी बड़ी सेरेमोनियल पोजीशन है, तो व्हाट कैन बी हिज सैलरी, ठीक है? ये आप सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा. तो माय डियर्स, टिल 2018 सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट वाज 1.5 लाख. 2018 तक उसकी 1.5 लाख सैलरी थी. बट in 2018 parliament made the procedure, ठीक है? Parliament increased the salary from 1.5 lakh to आज है 5 lakh. 5 lakh it is basically per month, ठीक है? और यहां पे भी था per month. So president of India takes the salary of 5 lakh per month और plus other emoluments और allowances, ठीक है? और सैलरी कितनी होगी या अलाउंसेस फैसिलिटीज कितने होंगे, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है बेटा? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशंस, ओथ, ठीक है, एंड द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है? अब हम अपने टॉपिक की ओर जाएंगे, ठीक है?
हाँ माय डियर्स, आई हैव टोल्ड यू कि President's oath is administered by Chief Justice of India. My dears, recently on 23 April, we have a new Chief Justice of India was appointed. ठीक है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए. ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए आपको क्या लिखना है. Who is the present or incumbent Chief Justice of India? मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछा, बिकॉज ऑन 23 April 2021 previous Chief Justice of India रिटायर हुए हैं एंड न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड, और आपको कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखना है. ठीक है, हाँ माय डियर्स, तो एज फार एज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर कंसर्न्ड, द पावर्स ऑफ द president can be understood in the following three heads. ठीक है, one we can call it executive power, executive powers, legislative powers और judicial powers. My dears, there are these are just main three. इसके अलावा भी फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल पावर्स है, इमरजेंसी पावर्स है, मिलिट्री पावर्स है, डिप्लोमेटिक पावर्स है. ठीक है, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दीज थ्री बिकॉज एंड दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है माय डियर्स, एज फार एज एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर कंसर्न्ड, और आपको पहले क्या याद रखना है अपने, इट मस्ट बी इन योर माइंड दैट ये जो प्रेसिडेंट होता है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का फॉर्मल हेड है. ठीक है, ये इंडिया का फॉर्मल हेड है. ठीक है, इसके पास पावर्स नहीं है. ठीक है, ओनली लीगल सेंस में इसके पास पावर्स है. ठीक है, और ही हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो as far as the executive powers of the president are concerned, all executive actions of the government of India are taken in his name. देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं कि नोटिफिकेशन में हमें क्या लिखना है, कौन सा ऑर्डर इशू करना, बट सारा कुछ होता है ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिल बनती है, बिल को हमारे लेजिस्लेटर्स बनाते हैं जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं, बट फाइनली अ बिल कैन नॉट बिकम ए लॉ, अ बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट अनलेस द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट. ठीक है, जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन न करे तो वो बिल लॉ बन नहीं पाएगी. सो as far as the executive powers of the president are concerned, all executive actions of the government of India are taken in his name. ठीक है, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पोजीशन या डिफरेंट पोजीशन, जुडिशियल पोजीशन या अदर पोजीशन को फुलफिल करने के लिए वो अपॉइंटमेंट कौन कराता है. पहले अगर आप देखोगे आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, तो एज फार एज द एग्जीक्यूटिव पावर्स में आता है इसके अपॉइंटमेंट पावर्स भी. ठीक है, और हु आर द पीपल elected by the appointed by the प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. इसी तरीके से जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, अदर मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, इसके बाद ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, हमारे इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इसी तरीके से गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, और जो यूटीज होती है दे आर बेसिकली रूल्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू हिज एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है, और उनकी डिफरेंट डेजिग्नेशन होती है, उनको हम कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर. ठीक है, कहीं पे
किसी अदर नेम से उनको पुकारा जा सकता है, ठीक है, बट जो ड्यूटीज होती है दे आर बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट रन्स देम और रेगुलेट्स देम थ्रू हिज एडमिनिस्ट्रेटर्स। और इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसी तरीके से केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इंडिया में, और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसी तरीके से जो यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, a commission, a body which conducts IAS एग्जाम, ठीक है, जो IAS एग्जाम करती है, तो उसका जो चेयरमैन और उसके जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यह है फ्रॉम द अपॉइंटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, और ये आता है किसमें? अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे लेजिस्लेटिव पावर्स में, पहले ही हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स फॉर राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में जो प्रोसीजर है कि यू हैव टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स, ठीक है, उनको नॉमिनेट कौन कराता है? प्रेसिडेंट करता है उनको नॉमिनेट, ठीक है। इन 12 मेंबर्स को ऑन व्हाट बेसिस दे आर नॉमिनेटेड? बिकॉज दे हैव वेल होल्ड और दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है। क्या उन्होंने इलेक्शन लड़ा है? क्या लोगों ने उसको वोट दिया? नो, बिकॉज उन्होंने क्रिकेट इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो सिंस दैट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू द सपोर्ट्स, ठीक है, और क्या क्रिकेट में उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, तो उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, ठीक है। और उसको नॉमिनेट किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया। क्यों किया? बिकॉज ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन सपोर्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से जो आर्ट्स में, साइंस में या अदर सोशल सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों को भी लिया जाता है राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद माय डियर्स, एज फार एज द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर कंसर्न्ड, प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरूग द पार्लियामेंट। समन का मतलब होता है इनवाइट कर सकता है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को, प्लस प्रोरूग वो मतलब मीटिंग कैंसल भी हो सकती है, ठीक है। एंड ऑल दीज पावर्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन वो ये चीजें वो खुद नहीं करता है, ही प्रेसिडेंट, मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड है, ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, ठीक है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट या नॉमिनल हेड है, और असल में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट इज जस्ट द नॉमिनल हेड एंड रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो असल में गवर्नमेंट जो होती है दैट इज पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आपके जहन में सवाल हो सकता है कि प्रेसिडेंट फिर क्यों है? देखिए माय डियर्स, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द नेशन एंड ही डज नॉट रूल द नेशन। ये बात आप याद रखिए, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द नेशन एंड ही डज नॉट रूल द नेशन। और जैसे आर्टिकल 74 में है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम and the president shall have to act in accordance with their aid and advice, ठीक है। जो पीएम और उसके मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को कहेंगे, प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन देयर एडवाइस, ठीक है। सो दैट इज वाई जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है ऑलमोस्ट एक सिंबॉलिक पोजीशन है, ठीक है, सिंबॉलिक या मैं कहूंगा रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या आएगा? प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरूग द पार्लियामेंट, हाँ, ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, हाँ, मैंने यहां पे राज्यसभा नहीं लिखा, मैंने लिखा ही कैन डिसॉल्व लोकसभा।
तो व्हाई नॉट राज्यसभा? बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट चेंबर। राज्यसभा जो है वो परमानेंट चेंबर है, परमानेंट हाउस है, एंड राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो डिसॉल्व किसको कर सकता है? लोकसभा को खुद। क्या प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशन है, अपनी चॉइस पे कर सकता है? नहीं, बट ही हैज टू हियर, यहां पे भी ही हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो मैंने आपको कहा ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्रेसिडेंट इन लोगों को इलेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, मैंने कहा मिनिस्टर्स, या फॉर एग्जांपल चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन। यहां पे भी प्रेसिडेंट को अपनी कोई चॉइस नहीं होती है, बट ही हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को कहेंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव टू मेक अ पर्टिकुलर पर्सन अ गवर्नर ऑफ दिस स्टेट, तो वही अपॉइंट होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी बॉडी ऑन हिज ओन चॉइस यहां पे। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे 2019 में जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है, बिकॉज जनरल इलेक्शन क्या होता है कि ऐसा इलेक्शन जबकि लेजिस्लेचर ने अपना टर्म पूरा किया है। फॉर एग्जांपल 2014 से 2019 तक पूरा टर्म, 5 ईयर टर्म पार्लियामेंट का पूरा हुआ, और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ है वी कॉल दैट जनरल इलेक्शन। ठीक है, और आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, फर्स्ट सेशन। और इसी तरीके से ही गिव्स हिज एसेंट टू द बिल्स। हाँ माय डियर्स, मैंने आपको कहा कि before coming to discuss this point, he has to give his assent to the bills. Here you have to differentiate between bill and act, या law भी कह सकते हैं आप। Bill is just a proposal of law, ठीक है, which is tabled in the parliament, discussed, debated, और फिर उस पर voting हो जाती है and then passed। ठीक है, this bill cannot become act unless and until president gives his assent। प्रेसिडेंट जब तक कि इस बिल पे अपना साइन नहीं करेगा तो ये बिल एक्ट नहीं बन सकती है। ठीक है, सो इट इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट। ठीक है, और वो बेसिकली कहीं पे इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है। ठीक है, बट देखिए, अगर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में कोई बिल पास हुई है, ठीक है, अब उसको एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट की साइन चाहिए। तो प्रेसिडेंट के पास जब ये बिल पहुंचती है, प्रेसिडेंट के पास यहां पे डिस्क्रिप्शन है कि ही कैन सेंड बैक दिस बिल फॉर देयर कंसिडरेशन। ठीक है, अगर उसको लगा कि कहीं पे इफ ही फाइंड्स एनी फ्लॉ, इफ ही फाइंड्स एनी लीगल एरर इन द बिल, ही कैन सेंड बैक, और आउट ऑफ हिज ओन चॉइस, यहां पे प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर है, आउट ऑफ हिज ओन चॉइस ही कैन सेंड दैट बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर देयर कंसिडरेशन। लेकिन वन इज द और इसमें एक चीज है, मनी बिल ये नहीं होनी चाहिए, और वन इज द पार्लियामेंट सेंड्स इट बैक विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो प्रेसिडेंट को वहां पे क्या, उस बिल को अपनी एसेंट देनी जरूरी है। ठीक है, तो एसेंट ऑफ बिल्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ लेट अस सी द जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स में जो जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसी तरीके से जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाँ, यहां पे आपको क्या याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसी तरीके से
chief justices of respective high courts and other judges of the high courts are appointed by the president. ठीक है, और इसी तरीके से प्रेसिडेंट के पास वन ऑफ द जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज दैट प्रेसिडेंट कैन pardon and commute. कम्यूटेशन पावर भी है उसके पास. देखिए पार्डन में प्रेसिडेंट माफ कर सकता है किसी को भी, ठीक है, एंड द पर्सन गेट्स रीड फ्रॉम द पनिशमेंट. और कम्यूट में क्या हो सकता है कि इफ ए पर्सन हैज बीन अवॉर्डेड a punishment of, for example, death sentence, तो president can commute it into imprisonment. ठीक है, या अगर किसी under commutation if a court has awarded any person for the imprisonment of 10 years, तो president उसको क्या कर सकता है, president can commute it by asking the person to pay the fine. ठीक है, to pay the fine, और उससे उसको बेसिकली क्या होगा, he will get rid from the imprisonment. ठीक है, तो ये all pardoning power of the president. ठीक है, जहां पे प्रेसिडेंट माफ कर सकता है. ठीक है, और अगर आपको जो मर्सी पिटिशंस प्रेसिडेंट को जाते हैं, जिन लोगों को कोर्ट डेथ सेंटेंस या फांसी देने फांसी के ऑर्डर्स देता है, तो then they have the only option to send the mercy petitions to president. और then यहां पे president के पास pardoning power है, petition का power है. ठीक है, और जैसे निर्भया के केस में हुआ, निर्भया के केस में आप निर्भया के बारे में पढ़ना है, गूगल से सर्च करना है. निर्भया के केस में 4 people were hanged. ठीक है, 4 people were hanged, और before their execution they sent their mercy petition to the president. ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ने डिनाई किया है उस वक्त. और अपार्ट फ्रॉम दीज पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री पावर्स भी है प्रेसिडेंट के पास. ठीक है माय डियर्स, मिलिट्री पावर्स. मिलिट्री पावर्स, ठीक है, प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि ही इज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द ऑफ ऑल द 3 कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल जो एयरफोर्स है, या आर्मड है, या फॉर एग्जांपल नेवी है. ठीक है, प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल दीज 3. और सुप्रीम कमांडर किस सेंस में, बिकॉज ही appoints the chiefs of these three armed groups, these 3 armed categories. ठीक है, नेवी के भी चीफ को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. एयरफोर्स के भी चीफ को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है, इन दैट सेंस ही इज कंसिडर्ड द कमांडर इन चीफ ऑफ, और आई वुड से सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल दीज फोर्सेस. और इसी तरीके से प्रेसिडेंट ऑल्सो एंजॉयज डिप्लोमेटिक पावर्स. डिप्लोमेटिक पावर्स का क्या मतलब है, जो भी इंडियन स्टेट, इंडिया एज अ कंट्री अदर कंट्रीज के साथ ट्रीटीज कंक्लूड करती है, एग्रीमेंट्स करती है. ठीक है, वो दैट इज डन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, और प्रेसिडेंट रिसीव्स एंड सेंड्स डिप्लोमेट्स. ठीक है, जो हमारे एक मुल्क के या इंडिया के लोग बाहर अदर मुल्कों में स्टेट का काम करता है, इंडिया का काम करता है. ठीक है, तो डिप्लोमेसी चलाते हैं. ठीक है, उनको सेंड भी करता है प्रेसिडेंट, और वहां से जो अदर कंट्रीज से एम्बेसडर्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, उनको रिसीव भी कौन करता है, प्रेसिडेंट. दैट इज डिप्लोमेटिक पावर. ठीक है, इसी तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है प्रेसिडेंट के पास. डिस्क्रिशनरी पावर्स. डिस्क्रिशन क्या होता है, डिस्क्रिशन होता है चॉइस, जहां पे आपको बिल्कुल अपनी चॉइस है. देखिए इन ऑल अदर, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, या डिप्लोमेटिक पावर है, यहां पे प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट
in accordance with the aid and advice of the PM and the Council of Ministers. लेकिन as far as the discretionary powers of the president are concerned, discretion here he has to act out of his own choice. ठीक है, out of his own choice. और प्रेसिडेंट कहां पे ये कर सकता है? जैसे मैंने आपको कहा कि if a bill or if any advice is given to the president, or president finds any flaw in that advice, or president finds any flaw, any error in that bill, तो president वहां पे क्या कर सकता है? President can send back that advice or send back that bill to the parliament for their consideration. ठीक है, और यहां पे एक चॉइस होती है उसकी. ठीक है, लेकिन वहां से जब उसको once after their consideration, whether the parliament, whether the respective houses have edited that or removed anything from that or added new things to that, president को उस वक्त president has to accept और president has to give his assent. लेकिन discretionary power कहां पे? पहले फेज में. ठीक है, a bill is sent to the president, और इसमें एक एक्सेप्शन है, मनी बिल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, if a bill is sent to the president, और president उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकता है, और यह है उसका डिस्क्रिशनरी पावर. इसी तरीके से जब पॉलिटिकल अपहेवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो 1989 से लेके 1998 तक इंडिया में रहा, पॉलिटिकल अपहेवल्स इन द सेंस कि नो सिंगल पार्टी could get the magic numbers in the parliament to form the government. तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और 1998 में क्या हुआ? बीजेपी गॉट 251 सीट्स एंड दे वर शॉर्ट ऑफ 21 सीट्स. तो प्रेसिडेंट एट दैट टाइम called upon Atal Bihari Vajpayee to secure the vote of confidence of the legislature. ठीक है, तो वहां पे अपॉइंट पीएम को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट इनवाइट्स द पर्सन फॉर securing the vote of confidence in the legislature. यूजुअली क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी. फॉर एग्जांपल अभी है बीजेपी की गवर्नमेंट, और नरेंद्र मोदी वाज द लीडर ऑफ द बीजेपी इन 2019. ठीक है, और वन इज द वन, तो इट वाज, ये ऑलरेडी पता होता है कि जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का वही पीएम बनता है. ठीक है, वहां पे जो अपॉइंट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को पीएम, वो सिंबॉलिक होता है. लेकिन यहां पे बिल्कुल उसकी डिस्क्रिशन है. हियर यहां पे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द डिस्क्रिशनरी पावर्स, व्हेन नो पार्टी इज एबल टू गेट द मेजर to get the magic numbers, यहां पे here president acts out of his own choice. He calls upon somebody, he calls upon a particular person and asks him to prove the majority. ठीक है, और ये these are discretionary powers of the president. So before concluding, let's have a brief look what we have done so far. आज हमने प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़े, और जहां पे हमने किया डिस्कस कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है. ठीक है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, एंड ही हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स एंड he does not reign. ठीक है, वो हुकूमत नहीं करता, बट वो खाली रिप्रेजेंट करता है. और मैंने कहा कि जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है सिंबॉलिक है. ठीक है, सिंबॉलिक टू रिप्रेजेंट द नेशन. और फिर हमने पढ़े हैं रेस्पेक्टिव जो अलग अलग पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ा है, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ा है, जुडिशियल पावर पढ़ा है, और फिर हमने पढ़ा है कि अपॉइंटमेंट्स कैसे की जाती है. ठीक है, अपॉइंटमेंट्स बेसिकली कौन करते हैं असल में कौन चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल चेयर, हु शुड बी द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इट इज डिसाइडेड बाय द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और लेकिन उसको अपॉइंट फिर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. ठीक है, जस्ट सिंबॉलिक वे है. तो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है ओवरऑल इट इज द पोजीशन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी. ठीक है, इट इज द पोजीशन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी, एंड इट इज नॉट प्रेसिडेंट इज नॉट देयर टू रूल. ठीक है, रूल करने के लिए कौन है? पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है इट इज ऑफ सिंबॉलिक इन नेचर, इट इज जस्ट द रेस्पेक्टेड पोजीशन एंड द डिग्निफाइड पोजीशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच.